ఆదివాసీ సంస్కృతి సాంప్రదాయాల్లో భాగంగా గోండి ధర్మ సత్తే కోయిత ఆగాజ్ అనే కార్యక్రమాన్ని ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇంద్రవెల్లి మండలంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. ముందుగా ఆదివాసీ గోండి ధర్మ కోయ గోండి ధర్మ సత్తే కోయిత ఆగాజ్ కార్యక్రమాన్ని ఇంద్రవెల్లిలో ఘనంగా జరుపుకున్నారు. కోయ పూణెం సంప్రదాయం ప్రకారం ముందుగా డోలు వాయిద్యాల మధ్య అందరూ సాంప్రదాయంగా తమ జాతి ప్రతీక అయిన గోండ్వానా జెండాకు పూజలు నిర్వహించారు. గోండ్వానా కోయ పూణెం కార్య నిర్వాహకులు మహారాష్ట్ర కేలాపూర్ మాజీ ఎమ్మెల్యే రాజుబాపు కుడుసం పంచ రంగుల జెండాను ఎగురవేశారు. అనంతరం సభలోకి వెళ్లి గోండి ధర్మగురు పహండిపరి ఉపర లింగో చిత్రపటానికి పూజలు చేసి కార్యక్రమం ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో గోండ్వానా కోయ పూణెం ప్రచారకులు నిర్వాహకులు కుడుమెత చేతన్, సువర్ణ వరకడే, ఉషతాయి ఆడ, వికాస్ కుడుమెత, కోయ పూణెం, గుంకాల్ ఆర్కా, మాణిక్ రావు, మిశ్రం మనోహర్, బావురావు మర్పే తదితరులు పాల్గొన్నారు. ముందుగా గోండి ధర్మ విషయాలపై మిశ్రం మేఘరాజ్ మరియు ఉద్దూరు విజయ్, మిశ్రం రేల రవి కళాకారులచే గీతాలాపనలు చేశారు. ఆపై చంద్రాపూర్కు చెందిన కళాకారులు సాంస్కృతిక కార్యక్రమం దెంసా నృత్యాలు నిర్వహించారు. ఈ దెంసా నృత్యం అందరినీ ఆకట్టుకుంది. అనంతరం మేశ్రాం రేలా రవి పహండి వరకు పరలింగో వేషధరణలో తన సాహిత్యాన్ని పాట రూపంలో ఆలపించాడు. ఈ సాహిత్యం అందరినీ ఆకర్షితులను చేసింది. అనంతరం ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథులుగా వచ్చిన ప్రముఖులు గోండి ధర్మకోయ పూణెం ప్రచారకులు మరియు కార్యనిర్వాహకులు గోండి జాతిపై అవగాహన నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా గోండి ధర్మకోయ పూణెం నిర్వాహకులు ప్రచారకులు మహారాష్ట్ర కేలాపూర్ మాజీ ఎమ్మెల్యే రాజుబాపు తొడుస మాట్లాడుతూ భారతదేశంలో విచ్ఛిన్నమైన గోండ్వానా సంస్కృతిని ఏకం చేసే దిశగా గోండ్వానా సంస్కృతిని కాపాడేందుకు గోండి ధర్మకోయ పూణెం ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా గోండి ధర్మంపై అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరుగుతుందని ఈ సందర్భంగా వారు తెలిపారు. ఇదే నేపథ్యంలో గోండ్వానా కోయ పూణెం ప్రచారకులు చేతన్ కుడిమిత మాట్లాడుతూ గోండ్వానా సంస్కృతి చాలా పెద్దదని, ఇది 5 ఖండాలలో ఉన్నదని, గోండ్వానా రాజ్యం ప్రాచీన కాలం నుండి మూలవాసుల తరాలు గోండ్వానా చరిత్ర చదువుకొని తెలుసుకోవాలన్నారు. మనమంతా గోండ్వానా మూలవాసులమని, ప్రకృతి పూజకులమని అన్నారు. మన చరిత్ర నేటి యువత తెలుసుకొని భావితరాలకు అందించాలని, గోండ్వానా జాతి విచ్ఛిన్నం కాకుండా గోండ్వానా సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను తెలుసుకొని అందరూ ఆదర్శంగా నిలవాలన్నారు. आपल्या धर्माचा कार्यक्रम करत राहाव. ಮುಂದೆ ಸಂಗೀತ ಹೋದು ಮಾವ ಶಾಂತಿರಪ್ಪ ಜೋರ ರಾಜಕೀಯ ಬಂದು ರಾಜ ರಾವಣ 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 ರಾಜ ರಾವಣ 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 ಜಯ ರಾವಣ 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 ರಾಜ ರಾವಣ ರಾವಣ ರಾವಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
गोंडी संस्कृति बोलते हैं, कोया संस्कृति बोलते हैं। ये संस्कृति आज विश्व की बहुत बड़ी संस्कृति है। ಮುಂದೆ ಸನ್ನಿಹಿತ ಹೋತು ಮಾವ ಹತ್ತಿರಪ್ಪ ಜೋರದು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ जो राजा मतलब वो शंभु इರುವಂತ मावा का आने कोया सबसे पहले इस धरती पर आने वाला है। कोया यानी मां का गर्भ, कोया यानी मां का गर्भ की गुफा आणि नेतृ गो यानी धरती अंडी यानी अंश, गो यानी ये ट्राइबल है उसमें बहुत से ऐसे एक विचारधारा बन गई है कि गोंडवाना बोलते हैं। हमारा भी वैसे ही हुआ है। हमारा भी भेटता है लोग कीर्तन हिंचे पेट ठोकरे म्हणतात युवातून पुसकी देके कोसळून गोर बतर गोरे में आज भूइते के धरती जो इस समाजाला जे बा इज्जे परिस्थिती म्हणतात हात मुले सोजी बसकेदारी बदल आया बिना भांडे कायदा माटे माटे की सिर का उंदी उंदी ये गोष्टी नावा उंदी उंदी ये गोष्टी नावा बाप तले भारी बेटा दिल्ली का राजगादी उदावैन कोयावासी दिल्ली का राजगादी उत्ते करी मावसूत्र तले आयो दिल्ली का राजगादी उदावैन आदिवासी जाती पजे अरसी म्हणता साका पिसका समजण्यासाठी जाती पजे अरसी म्हणता काका पुसका समजण्यासाठी तिरिले वायवा मेलिले वायवा बोल उरकून तिरिले वायवा मेलिले वायवा उदा वायवा ते दा वायवा सुडसी पाका मजबूत फुट्टा या वीरा सैतान बेटा अंग्रेजतून पाहते आणि नैजाम सरकारतून पाहते फुट्टा आता फुट्टा पाहायला लागला वीरकुन गिरी आरएसएस वाली माझ्यासाठी तिरिले वायवा मेलिले वायवा उदा वायवा ते दा वायवा सुडसी पाका मजबूत गुट्टा या वीरा सैतन बेटा सेलड मियड रक्षत लासी सेलड मियड रक्षत लासी तलवारता धार आसी सेलड मियड रक्षत लासी तलवारता धार आसी जाती पदे अरसी म्हणता साक पिसक समजण्यासाठी जाती पदे अरसी म्हणता साक पिसक समजण्यासाठी जाती पदे अरसी म्हणता साक पिसक समजण्यासाठी कि पहला जो इस धरती पर मानव आया है उसे कोया कहा गया है। ये मैं नहीं कहता हूँ, जो भाषा तज्ञ लोग हैं उनका कहना है। इस धरती पर जो पहला इंसान आया है उसे कोया कहा गया है और उसी का जो अंश है उसको ही जो हम गोंडी में नेतुर बोलते हैं उसका जो अंश है आज हम उस खुद को हम कोयतुर बोलते हैं। ये हमको पहले समझना होगा, तब जाकर हमें गोंडवाना और कोयामुरी द्वीप क्या है समझ में आएगा। पर हमारे समाज में कुछ ऐसे ही लोग हैं जो आज के गोंडवाना बोले तो कुछ ये एक क्राइटेरिया में रख दिया है, ये सिर्फ गोंडों का है गोंडवाना। पर गोंडवाना एक्चुअल में एक भूभाग का एक नाम था जो कि आप देखे होंगे, जो कि हिस्ट्री में पढ़े होंगे। आज भी अगर वर्ल्ड का जो मैप देखा जाए आपने, सबसे पहला जो मैप है वर्ल्ड का उसमें आपको दो पार्ट ही दिखेंगे, जो कि चार जो खंड की धरती थी उस पर लोअर एशिया था और जो दक्षिण गोलार्ध है जिसको हम गोंडवाना लैंड बोलते हैं। आज भी जो वर्ल्ड का मैप है सबसे पहला जो मैप है उस पर आपको दोनों ही दिखेंगे, एक तो गोंडवाना और सेकंड लोअर एशिया। वहां से उससे पहले भी मानव जीवन था जो कि आज से करीबन 32 लाख हजार साल पहले। जो साइंस के स्टूडेंट हो गए वो थोड़ा ध्यान से सुने। आज से करीबन 32 करोड़ लाख पहले जब यह पृथ्वी की निर्मित हुई तब से लेकर आज तक
5 मास एक्सटेंशन हुए, हम क्या बोलते हैं उसे, महाप्रलय। 5 मास एक्सटेंशन हुए जो कि हम महाप्रलय बोलते हैं। उस महाप्रलय जो 5 एक्सटेंशन में आज के जो जीव जंतु है यहाँ पर पृथ्वी पर रहने वाले, वो उस टाइम के हिसाब से आज सिर्फ जो धरती पर रहने वाले जो जीव है सिर्फ 1% जीव है, जो कि तब जब पृथ्वी की निर्मित हुई थी 32 लाख करोड़ साल पहले, तब जो जीव सृष्टि थी उसके मुकाबले आज जो जीव है, हम इंसान और जो कुछ भी अब प्राणी मात्रा है वो आज सिर्फ 1% है धरती पर। और जो आज तक के जो 5 महाप्रलय हुए, 5 मास एक्सटेंशन हुए, उसमें 99% जो जीव थे खत्म हो गए, उसमें ये डायनासोर वगैरह ये थे होगा। और वो 5 मास एक्सटेंशन होने के बाद जो जंबो द्वीप था उसी के 2 पार्ट हो गए थे, एक लोरेशिया और एक गोंडवाना। उसी में उसको ही आगे जाके कोयामुरी द्वीप, गोंडवाना लैंड इस नाम से संबोधा गया। ये हमको इतिहास पढ़ना होगा, तब जाकर हमें हमारा गोंडवाना क्या है और ये गोंडवाना क्या है हम जो बोलते हैं वो समझ में आएगा। ये गोंडवाना सिर्फ यहाँ के गोंडों का नहीं है, जो कि यहाँ के जो पहले की यहाँ की जो अभी जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था के पहले जो यहाँ की गण व्यवस्था थी, और वह गण व्यवस्था में जो रहने वाले सभी जो मूल निवासी थे उनकी यह व्यवस्था है, जो कि गोंडवाना लैंड के गोंडोला उनको कहा जाता था। ये गोंडवाना सिर्फ मैं नहीं बोलता हूँ, अब आप पढ़े लिखे हो, आप सभी के पास मोबाइल है, गूगल में सर्च कर लो गोंडवाना क्या है। ये गोंडवाना सिर्फ हमारे तेलंगाना में, हमारे महाराष्ट्र में, क्यों हमारे इंडिया में नहीं, तो ये 5 जे पंचखंडन धरती माता जो कि 5 खंड धरती है, उसका जो भूभाग था उसको गोंडवाना कहा गया। अगर आज भी आप गूगल पर सर्च किए तो आपको गोंडवाना क्या है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। गोंडवाना के नाम से बहुत ही बड़े ऐसे, पर गोंडवाना ये बहुत ही विशाल ऐसा शब्द है और विशाल ऐसी संस्कृति है जो गोंडवाना भूभाग की है, जो कि हम आज गोंडी संस्कृति बोलते हैं, कोया संस्कृति बोलते हैं। ये संस्कृति आज विश्व की बहुत बड़ी संस्कृति है। अभी आज आपने देखा होगा, अभी भी वो जो खतरा डरा नहीं जो कि हम कोरोना बोलते हैं, कोरोना क्या है, क्या है कोरोना? अभी जो हम कोरोना बोल रहे हैं, करीबन 1 साल हो रहा है कोरोना के नाम से। बहुत हमारे देश में पूरा जो सिस्टम था वो बिगड़ गया है कोरोना के नाम से। ये कोरोना क्या है? अगर आपने ऑब्जर्व किया, ये मैं नहीं कहता हूं, जो एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे का जो रिजल्ट है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये जो कोरोना टाइम था, इस कोरोना टाइम में 3 महीने बाद एक सर्वे हुआ। उस सर्वे में ये बात सामने आई कि जहां जो ट्राइबल्स है, जो हम मूल निवासी बोलते हैं, गोंड कोयतूर बोलते हैं, कि इंडिया में जहां ट्राइबल लोग है, जहां ट्राइबल एरिया है, वहां पर अभी भी कोरोना घुस नहीं सका है। क्यों? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी पावर वैसी है। हम प्रकृति को पूजने वाले हैं, प्रकृति के समरस में होकर हम चलने वाले हैं, हमारे जीवन यापन करने वाले हम जो मूल निवासी है, जो कि अभी तक जो जितने भी ट्राइबल बेल्ट है वहां पर कोरोना का अभाव बहुत कम है। कोरोना कम है, कहीं कहीं तो ना के बराबर है। ये हमारा डीएनए है, ये हमारा डीएनए है। ये रिसर्च जो सर्वे हुआ उसका रिजल्ट है। क्यों नहीं है? जहां पर ट्राइबल बेल्ट है वहां पर कोरोना क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे जितने भी जो मूल निवासी है वो सभी जो यहाँ की प्रकृति है, जो हम केड़ा बोलते हैं जंगल, उसके संपर्क में जो रहते हैं, वो सब उनके जो संपर्क में आने से, जो कि केड़ा जंगल बोलते हैं, उनके संपर्क में आने उनको जो इम्यूनिटी जो पावर मिलती है, उनका खान पान जो उनको यहाँ का वातावरण मिलता है वो उनको स्ट्रांग बनाता है। और जो ये संस्कृति ही है, ऐसी है कोया संस्कृति कि इसमें जो कुछ भी इवेंट होते हैं, मर्मिंग जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कोई संस्कार होते हैं, जन्म, मर्मिंग और जो कि मृत्यु होती है, वो सभी हम प्रकृति को जो निसर्ग है उसमें समरस होके कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे मर्मिंग होता है। मैं महाराष्ट्र से आदिलाबाद जिले से लगती जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो आर्नी केलापुर विधानसभा, उस क्षेत्र से मैं विधायक था और आज मैं एक्स MLA हूँ। मैं पूरे
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और सभी राज्यों में जाके मैं खुद एक MLA प्रोफेसर राजू तोड़साम सभी राज्य से, सभी देश में जितने भी मेरे भाईजन हैं, सगाजन हैं, इनको यही संदेश देना चाहता हूँ। देश के करीबन 18 राज्यों से ज़्यादा राज्यों में गोंडियन संस्कृति, कोया संस्कृति, कई आदिवासी संस्कृति भी बोली जाती है। इस सभी राज्यों की संस्कृति का जतन करने के लिए महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों में कोया पुण्य का प्रोग्राम होने जा रहा है, हो रहा है। मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से, आज के ये कोया पुण्यम कार्यक्रम के माध्यम से मेरे सभी सगाजनों से, सभी भारतवर्ष में जो गोंडी संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, जो कोया पुण्यम को मानने वाले जो लोग हैं, उनको मेरा संदेश है। 1874 में पहली बार जब जनगणना हुई, तब जनगणना में 1871 में जब जनगणना हुई, उस टाइम से लेके स्वतंत्र तक, यानी कि 1947 तक आदिवासी का, कोया पुण्यम का, कोया संस्कृति का, गोंडी धर्म का धर्मकोड था। लेकिन उसके बाद राज्य में, देश में हर धर्म के लोग हैं। हमारा भी धर्म है, हमारा भी संस्कृति है। 5000 पूर्व से लेकर आज तक हमारी संस्कृति का जतन हम लोग कर रहे हैं। हमारी डिमांड है, हमारी मांग है कि स्पेशल 2021 के जनगणना में स्पेशल धर्मकोड होना चाहिए, गोंडी धर्म का धर्मकोड होना चाहिए, कोया पुण्यम का, कोया संस्कृति का धर्मकोड होना चाहिए। इसलिए मेरे सभी सगाजनों से मैं आह्वान करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ कि आने वाला ये 2021 के सेंसस में, जनगणना में सभी ने गोंडी धर्म का, कोया धर्म का उल्लेख करना चाहिए। यही संदेश मैं ये कोया पुण्यम से माध्यम से देना चाहता हूँ। पहले का जो हमारा संस्कृति था, वो संस्कृति का हनन होने जा रहा है, क्योंकि इस देश में हिंदू संस्कृति है, ईसाई संस्कृति है, बौद्ध संस्कृति है। सभी संस्कृति के लिए से इससे पहले हमारी संस्कृति थी, हमारा कोया पुण्यम संस्कृति थी। इस वर्ड पे जितने भी कोया पुण्यम लोग, यानी कोया संस्कृति लोग हैं, उन लोगों का जतन करने से बेहतर उनका खलीकरण हो रहा है, खच्चीकरण हो रहा है। और दिन ब दिन हमारे लोग जो पाश्चात्य संस्कृति का अवलोकन कर रहे हैं, इसलिए हमारे समाज में जो पूर्वकई लोग हैं, जो आज भी जंगल में रहते हैं, जब डोंगर दरी में रहते हैं, वो लोग आज भी इस संस्कृति का जतन कर रहे हैं। लेकिन जब शहरों में जब लोग जा रहे हैं, तो शहरों में जाने के बाद बाहर की संस्कृति का वो अवलोकन कर रहे हैं। इसलिए मेरे समाज भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने संस्कृति का जतन करो, अपने संस्कृति का सम्मान करो, अपना संस्कृति का सम्मान करो, और कोया पुण्य पूरे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इसका प्रचार और प्रसार करना चाहिए। ये संदेश मैं इस माध्यम से देना चाहता हूँ। థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ఈ వార్తను వీలైతే షేర్ చేయండి, నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ప్లీజ్ సపోర్ట్ టు us.